میرا جیٹ روزانہ زنانہ کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آ جاتا۔ میرا شوہر پریشان ہو کر مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیتا اور جیٹ میرے کمرے میں سوتا۔ ایک دن میں دراز میں اپنا موبائل بھول گئی اور جو ہی رات کمرے کا دروازہ کھلا، اندر کا منظر دیکھ کر دل دہل گیا، کیونکہ شوہر جیٹ کے شادی کی پہلی رات تھی اور میں دلہن بنی اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ شادی میں نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر کی تھی اور یہ مکمل طور پر ایک ارینج میرج تھی، اور میں اپنے سسرال والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ ابھی میں اپنے شوہر کے بارے میں بھی یہی سب باتیں سوچ رہی تھی کہ کمرے میں دستک کی آواز آئی۔ میں چکنی ہو کر سیدھی ہو گئی اور گھونگھٹ تھوڑا اور نیچے کر لیا۔ اس پل میرے ذہن میں اماں کی نصیحت آئی، جنہوں نے کہا تھا کہ شوہر کے آتے ہی اس کو سلام کرنا۔ میں نے قدموں کی آواز سن کر آہستہ سے سلام کیا، مگر جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ میں نے 1 منٹ انتظار کیا کہ ابھی اس کی طرف سے سلام کا جواب آئے گا، مگر اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے گھونگھٹ کے نیچے سے دیکھا تو مجھے زنانہ کپڑے نظر آئے۔ شاید شوہر کی جگہ کوئی اور کمرے میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتی کہ کمرے میں کون آیا ہے، وہ جو کوئی بھی تھا جلدی سے باہر چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ کون آیا کمرے میں اور چلا بھی گیا۔ یہ بات اس لیے بھی حیران کن تھی کیونکہ ان کے گھر میں تو کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ مجھے امی نے بتایا تھا کہ میرے شوہر کا صرف ایک بڑا بھائی ہے اور نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ بہن۔ پھر یہ اتنے دھڑلے سے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ جہاں تک میں جانتی تھی کہ سارے مہمان بھی جا چکے تھے، ابھی تک میرا شوہر بھی نہیں آیا تھا۔ میں اکیلی اب پریشان ہونے لگ گئی۔ میں نے وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اب تک تو میرے شوہر کو کمرے میں آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے تھک کر گھونگھٹ ہٹایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر ہر طرف خاموشی تھی، جانے میرا شوہر کہاں تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا، مگر میرا شوہر مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں رونے والی ہو گئی اور کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اماں کو کال ملائی۔ اماں رات کے اس پہر میری کال دیکھ کر حیرت سے بولی، نازی تم اس وقت کال کیوں کر رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا اماں خیریت کہاں ہے، میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گیا۔ اماں سن کر حیران رہ گئی اور کہا، اچھا یہ بات ہے، وہ ابھی تک تمہارے پاس کمرے میں نہیں آیا؟ اسے فون کر کے پوچھو کہاں ہے وہ۔ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، اماں میرے پاس اس کا نمبر نہیں، آپ نے کس سے میری شادی کرا دی؟ اماں کہنے لگی، اچھا تم پریشان مت ہو، میں کال کرتی ہوں اسے، تم فون بند کرو۔ میں فون بند کر کے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کا فون آیا اور کہا کہ تمہارا شوہر ذرا مصروف تھا، ابھی بس آ جاتا ہے۔ مجھے اس لیے خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ گھر میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے خود اپنے کمرے میں ایک عورت کو دیکھا تھا جو باہر نکلنے پر مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ وہ کون تھی اور پھر کہاں چلی گئی۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی جب کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہینڈسم سا لڑکا کمرے میں داخل ہوا ہے۔ شاید یہی میرا شوہر تھا کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور سلام لے کر کہنے لگا۔ میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کی پسند کو سراہا تھا کیونکہ میرا شوہر بہت حسین تھا۔ ابھی ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر باہر گیا اور پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا، میرے بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی گھبرا کر اس کے پیچھے گئی، مگر اس نے سامنے والے کمرے میں جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ میں افسردہ ہوتے ہوئے کمرے میں واپس آ گئی۔ پہلے ہی دن میرے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے تھے کہ میں نہ چاہ کر بھی شک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرا نام زویا ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی، اس لیے ماں باپ کی ساری توجہ اور ساری محبت میرے حصے میں آئی تھی۔ میں نے جو خواہش کی میرے ماں باپ نے پوری کی۔ اگرچہ ہم مڈل کلاس تھے مگر پھر بھی میرے ماں باپ نے ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے پالا پوسا اور جوان کیا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے میٹرک کے بعد ایک مہنگے والے کالج میں پڑھنے کی ضد کی تھی۔ ان دنوں ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ ابا نے جانے کس سے قرض لیا اور کیا کیا، مگر میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجھے اس کالج میں داخلہ لے دیا۔ میں نے انٹر کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی خواہش کا اظہار کیا تو اماں اور ابا دونوں چپ رہ گئے۔ میں بھی مایوس ہو کر پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ ایک دن ابا نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے زور و شور سے پڑھائی شروع کر دی۔ میری ہاؤس جاب ہونے کے بعد اماں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پسند تو نہیں، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی پسند نہیں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ ایک دن ابا نے مجھے بتایا کہ میں اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست اب اس دنیا میں نہیں، اس کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں۔ میں چاہتا ہوں چھوٹے بیٹے سے تمہاری شادی ہو جائے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ امی نے مجھے بتایا کہ یہ ابا کے انہی دوست کے بیٹے ہیں جو پچھلے 5 سال سے میری کالج فیس ادا کر رہے ہیں۔
अब वक्त आ गया है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तुम वहाँ खुश रहोगी। अम्मा की बातें ठीक थीं, यूँ मैंने बगैर देखे हाँ कर दी। मैं खुद अपने शौहर को शादी से पहले नहीं देखना चाहती थी। अब जब शादी की रात उसे देख लिया था तो वो अच्छा लगा था, लेकिन उसकी हरकतें मशकूक लग रही थीं। पहले ही दिन मुझे इसकी हरकतें मशकूक लग रही थीं। पहले ही दिन नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपने बड़े भाई के पास चला गया। ये सब देखकर मैं तजस्सुस और शक में मुब्तला हो गई थी। ये बात भी काबिल गौर थी कि अभी तक मेरे जेठ की शादी क्यों नहीं हुई। मैंने जेठ को अभी तक देखा तो नहीं था, मगर अब्बा ने शायद 1-2 बार बताया था कि वो अपने छोटे भाई से 4-5 साल बड़ा है। इस हिसाब से अब तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, मगर जाने क्या चक्कर था। शायद वो बीमार रहता हो, इसीलिए अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इन्हीं सारी बातों को सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं वैसे ही सो गई। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मेरा शौहर अभी तक अपने भाई के कमरे में था। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी ताकि वो लोग जाग जाएं। वलीमा तो शाम को था और मेहमानों ने भी सीधा शादी हाल पहुंचना था। मैंने सोचा कि मैं नाश्ता खुद बना लेती हूँ। तब तक नाश्ते पर मैंने अपने जेठ को देखा था, वो कहीं से भी मुझे बीमार नहीं लगा था। बहरहाल उनके नाश्ता करने तक मैंने सोचा कि दोनों कमरों को साफ करवा लेती हूँ। मुलाजमा को लेकर जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंची तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब बेड पर एक लाल रंग का दुपट्टा देखा। इस कमरे में तो मेरा शौहर अपने बड़े भाई के साथ सोया था, तो फिर ये लाल दुपट्टा कहाँ से आ गया। मुलाजमा ने दुपट्टा देखा तो झट उठा लिया, कहने लगी, अरे ये तो मेरा दुपट्टा है, कई दिन पहले यहीं कहीं सफाई करते खो गया था। वो लड़की बुड़बुड़ाती हुई भाग गई तो मैं भी उलझते हुए वापस आ गई। कुछ तो अजीब लग रहा था, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। दिल चाह रहा था कि अस्पताल अपनी ड्यूटी पर चले जाऊं, मगर शादी के दूसरे ही दिन ड्यूटी पर जाते तो सब अजीब अजीब सवालात करते। थक हार कर मैं अपनी अम्मा को फ़ोन करके कहा कि वो सब मेरे पास आ जाएं, मेरा दिल नहीं लग रहा। अम्मी मेरी उदासी पर हंसने लगी और कहने लगी, अब तुमने वहीं रहना है और वही तुम्हारा घर है। मैं क्या कहती कि इस घर और घर के मकीनों से मुझे अजीब सी बेजारी हो रही है। अगर ऐसा कुछ कहती तो माँ परेशान हो जाती। मैंने कुछ देर बाद फ़ोन बंद कर दिया। मेरा जेठ कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया। उसके हाथ में एक ज्वेलरी वाला डब्बा था। कहने लगा, ये तुम्हारे शौहर की तरफ से है, मैंने उसे ये सेट खरीद कर दिया था ताकि वो तुम्हें मुंह दिखाई में दे दे, मगर सुबह देखा तो ये अलमारी में ही था। मैंने कहा, आपकी तबीयत अब कैसी है? वो कहने लगा, मेरी तबीयत को क्या होना है? मैंने चौंक कर पूछा, कल रात आपकी तबीयत खराबी की वजह से ही तो वो सारी रात कमरे में नहीं आया। जेठ हड़बड़ा कर कहने लगा, ओ हाँ याद आया, रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, शायद खाना कुछ ज्यादा खा लिया था, इसलिए। मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए रात को मेरे कमरे में आ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी वजाहत पर यकीन नहीं आया, मगर बहरहाल मैंने तफ्तीश नहीं की। शाम को वलीमा हुआ। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे उम्मीद थी कि आज की सारी रात मेरे शौहर की मेरी तारीफ करते ही गुजर जाएगी। मैं बेचैनी से उसका इंतजार करने लगी। कल की तरह आज भी देर हो रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर शौहर कमरे में आया। उसे कमरे में आए 10 मिनट भी ना हुए कि मेरा जेठ एक बड़ी सी चादर में खुद को लपेटे कमरे में आया और मुझे कहा कि मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊं। मैं बड़ा हैरान हुई कि ये क्या तमाशा है। कल शौहर उसके कमरे में चला गया था और आज वो इस कमरे में आ गया है। मेरे शौहर को चाहिए था कि वो अपने भाई को कहे कि कमरे से निकल जाओ, मगर बजाय उसके कहने के उसने मुझे कहा कि मैं साथ वाले कमरे में चली जाऊं। मैंने गुस्से से पूछा, मैं क्यों जाऊं? तो कहने लगा, हम दोनों सालों से एक साथ सोते आए हैं, इसलिए अभी ये आदत छोड़ने में बहुत वक्त लगेगा। मैंने अपना लहंगा उठाया और तिलमिलाते हुए दूसरे कमरे में चली आई। कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरा शौहर कमरे में आया और कहने लगा, तुम भैया के कमरे में आने का गुस्सा मत करना, उन्होंने ही मुझे माँ और बाप के इंतकाल के बाद संभाला है। मैं उन्हें अपनी वजह से दुख नहीं दे सकता। अगर तुम इस तरह रह सकती हो ठीक है, वरना चाहो तो जा सकती हो। मैं भला रात के इस पहर कहाँ जाती? मैंने मुंह फेर लिया और वो चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दोनों भाई चाहते क्या हैं। मुझे अपने जेठ की हरकतें कुछ मशकूक लगती थी। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो मुझे फिर से बेड पर एक चमकदार दुपट्टा और लड़कियों वाले कपड़े दिखाई दिए। मेरे शक को यकीन का रूप उस वक्त मिला जब एक दिन जेठ इन्हीं जनाना कपड़ों में मेरे कमरे में आया और मुझे फिर से कमरे से जाने को कहा। मैं एक डॉक्टर थी, मैं समझ गई कि मेरा जेठ किसी ज़हनी आरसे में मुब्तला है। मेरे शौहर ने भी यही कहा कि मेरा भाई थोड़ा बीमार है, इसलिए रात को जनाना कपड़े पहन लेता होगा। मुझे एकदम शादी वाली रात याद आ गई जब मेरे कमरे में कोई औरतों वाले कपड़े पहनकर दाखिल हुआ था। इसका मतलब है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरा जेठ ही था। मैंने अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू कर दी। अम्मी और अब्बू जब भी फ़ोन करते मैं यही कहती कि मैं खुश हूँ। अब मैं क्या कहती कि मैं कितनी मुश्किल से इस घर में वक्त गुजार रही हूँ। अब रोज़ यही मामूल बन गया कि रोज़ मेरा जेठ जनाना कपड़े पहनकर मेरे कमरे में आ जाता और मुझे कमरे से निकाल देता। मैं साथ वाले कमरे में जाकर सो जाती। मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि वो अपने भाई का इलाज करवा रहा है, कुछ ही दिनों में वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं उसकी बात समझती थी, इसलिए मैंने एतराज़ नहीं किया। मैं देखती थी कि मेरा जेठ सारा दिन ठीक हालत में रहता था, मगर जाने रात होते ही उससे क्यों क्या होने लगता था।
मैं एक दिन ड्यूटी से वापस आई तो मेरे शौहर ने कहा कि कल मेरी बहन अपने शौहर के साथ हमारे घर आ रही है। मैंने हैरानी से सवाल किया कि तुम्हारी तो कोई बहन नहीं थी, फिर अब ये कौन है? कहने लगा, वो हमारी मुंह बोली बड़ी बहन है। उसकी शादी काफ़ी साल पहले हो गई थी। हमारी शादी पर वो आ ना सकी थी क्योंकि इसके शौहर की तबीयत ख़राब थी। अब कल आ रही है। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या एतराज़ होना था। मैंने अगले दिन फैसला किया कि मैं घर जल्दी चली जाऊंगी ताकि अपनी नंद का इस्तेकबाल कर सकूं। शाम 6 बजे के करीब नंद और उसके शौहर अपने 2 बच्चों के साथ आ गए। अपने शौहर की बहन को देखकर मैं चौंक गई। ऐसा लगा कि मैंने उसे पहले कहीं देखा हुआ था। मैंने उससे सलाम लिया तो उसने अपने शौहर को कहा, मशहूद ये मेरी भाभी हैं। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। ये 2 साल पहले की बात थी। मैं किसी दूसरे अस्पताल में जॉब करती थी। उस वक्त एक मरीज़ा ऐसी थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती थी। बहसीयत डॉक्टर मेरी पेशा वाराना जिंदगी में सबसे इबरतनाक मौत मेरी इस मरीज़ा को आ रही थी और इसे देखकर मुझ समेत सारा अमला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। मरीज़ा का नाम सुरैया था। सुरैया को फालिज का अटैक हुआ था। फालिज के अटैक की वजह से सुरैया का दिल सिकुड़ता जा रहा था। बतौर डॉक्टर मैं जानती थी कि सुरैया का बचना अब नामुमकिन है। लिहाजा मैंने अपनी मरीज़ा के बेटे मशहूद को बता दिया था कि आपकी वालदा के पास फ़कत 1 हफ्ता है। मैं अद्वियात लिख कर दे देती हूँ, आप इन्हें घर ले जाएं। जब तकलीफ़ हो तो दुआ खिला दें। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि बेटे से पहले बेटे की बीवी और सुरैया की चहेती बहू बोल उठी कि नहीं, हम माँ जी को घर नहीं ले जा सकते। अम्मा जब तकलीफ की शिद्दत की वजह से आहो बका करती हैं तो मेरी नींद खराब हो जाती है और बच्चे भी डर जाते हैं। मरीज़ा की बहू के इसके बारे में कहे गए अल्फाज सुनकर बेख्तियार मेरे हाथ कानों तक गए थे और मेरे मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकला था। मैंने उसके बेटे की तरफ देखा जो सर झुकाए बेबस खड़ा था, जैसे बीवी के फैसले की तायद करने के लिए हिम्मत जमा कर रहा हो। और जब वो मुझसे मुखातिब हुआ तो उसने अपनी माँ के लिए अल्फाज में अपनी बीवी से भी कम हमदर्दी जताई और कहा कि जब मेरी माँ मर जाए तो मुझे कॉल कर देना। मैं ईदी वालों से कहूँगा कि वो लाश वसूल कर लेंगे, जबकि आपकी फ़ीस आपको कल मिल जाएगी। और फिर वाकई ही कल एक ब्लैंक चेक मेरी मेज़ पर था। दूसरी तरफ मरीज़ा की हालत इंतहाई ख़राब थी। अचानक से तकलीफ की शिद्दत बढ़ जाती। कभी मरीज़ा कहती, मेरे बेटे मुझे कफन न पहनाओ, मैं जिंदा हूँ। कभी कहती, मेरी कब्र बहुत तंग है, मैं इसमें नहीं रह सकती। कभी मरीज़ा को लगता कि बहुत बड़ा सांप मरीज़ा को डसने लगा है। मरीज़ा की हालत और बातें सुनकर मरीज़ा के सर पर बैठी अटेंडेंट खौफजदा होकर भाग जाती थी। मरीज़ा को आज अस्पताल में 3रा दिन था और 3 दिन से मुसलसल सारा अमला इतना खौफजदा हो चुका था कि फीमेल नर्सिस ने अस्पताल में मजीद काम करने से इनकार कर दिया। मरीज़ा की आहो बका से बाकी मरीज भी परेशान थे और औरतें इंतहा की खौफजदा थी। मरीज़ा का दिल आधे से ज़्यादा सुकड़ चुका था। खून की सप्लाई कम हो चुकी थी और मरीज़ा की तकलीफ में इजाफा हो चुका था। मुकामे हैरत था कि फिर कभी मरीज़ा का बेटा और बहू अस्पताल नहीं आए थे। अब मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त करीब था। मैंने मरीज़ा के कमरे में तैनात नर्स को कुरान पाक पढ़ने और बावजू रहने की तलकीन कर रखी थी। मैं मेडिकल इलाज मुआवजे के साथ रूहानी इलाज मुआवजे की भी कायल हूँ। मैं चाहती थी इस कलाम के सदके ही सही मगर मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त पुरसकून हो। तलावत कुरान से मरीज़ा बहुत हद तक पुरसकून रहने लगी, मगर अब भी सांप, कबर, कफन, बिच्छू और मौत का खौफ इस पर सवार था। जब मरीज़ा का दिल मुकम्मल सुकड़ कर सप्लाई देना बंद कर गया तो मरीज़ा की रंगत इंतहाई खौफनाक हो गई थी। मरीज़ा की मौत वाक़या हुई थी। इंतहाई इबरतनाक मनाजिर थे। जब मरीज़ा के बेटे को इत्तला दी गई तो उसने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर है। मरीज़ा की बहू ने भी अस्पताल में आना मुनासिब न समझा। मजबूरन मरीज़ा की लाश ईदी वालों के हवाले करना पड़ी। मरीज़ा की जब आखिरी सांसें चल रही थी तभी मरीज़ा के जिस्म से बोसीदा लाश जैसा ताफुन उठ रहा था। मरीज़ा की मौत के बाद मैंने तहकीक की तो पता चला कि मरीज़ा काला जादू करवाकर लोगों को अजियत से 2-4 रखती थी, बल्कि मरीज़ा ने काले जादू के ज़रिए से कई लोगों को अपाहिज और कई लोगों की जान ली थी। शायद इसी गुनाह की सज़ा उसे यूँ मिली थी। इस औरत की बहू और बेटा यही थे जो इस वक्त मेरे ससुराली होने की हैसियत से मेरे सामने बैठे थे। इस औरत ने मुझे नहीं पहचाना था, लेकिन मैं उसे पहचान गई थी क्योंकि मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद थी। संगदिल लोग याद रह जाते हैं। मैंने उसे महसूस न होने दिया कि मैं उसे जानती हूँ। मैंने पूछा कि आपकी सास कहाँ है तो कहने लगी वो 2 साल पहले कैंसर से वफात पा गई थी। मैंने तो अपनी बीमार सास की बहुत खिदमत की। इसके झूठ सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि वो तो अपनी सास को मरने के लिए छोड़ गई थी, अब कैसे झूठ बोल रही थी। मुझे बहुत तैश आया और दिल किया कि इसके मुंह पर उसे सुना दूं, मगर फिर सोचा कि मेरी नई शादी है इसलिए चुप ही रही तो बेहतर है। नंद 3 दिनों के लिए रहने आई थी। पहले मैंने यही सोचा था कि अपनी नंद को वक्त देने के लिए अस्पताल से छुट्टी ले लूंगी, मगर अब सोचा कि ऐसी औरत के लिए क्या छुट्टी करनी जो इंसान ही ना हो। रात को फिर से मेरा जेठ जनाना कपड़े पहनकर दाखिल हुआ तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो अपनी बहन का लिहाज करेगा और शायद आज ना आए, मगर उसने तो अपनी बहन का ख्याल भी ना किया। मैं कमरे से बाहर गई तो मेरी नंद बाहर ही खड़ी थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरे भाई को एक बीमारी है, तुम इसकी वजह से परेशान मत होना, वो जल्द ठीक हो जाएगा। मैं सुबह अपनी ड्यूटी पर चली गई। जाने क्यों मुझे ये सब बहन भाई बशमूल अपने शौहर के अजीब और गरीब लगते थे। इनकी आदतें और बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थीं।
किसी को नई नवेली दुल्हन के एहसासात का ख्याल नहीं था। सब मुझे ये कह रहे थे कि परेशान ना हो, मगर मुझसे बढ़कर कौन परेशान हो सकता था। मैं कहकर तो यही आई थी कि आज रात अस्पताल में नाइट शिफ्ट करूंगी, मगर फिर मेरे सर में दर्द होने लगा तो मैं घर वापस चली आई। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। यकीनन जेठ मेरे शौहर के साथ अंदर था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी ताकि अपनी कुछ जरूरी चीजें ले लूं, मगर शौहर ने बजाय दरवाजा खोलने के कहा, मैं इस वक्त दरवाजा नहीं खोल सकता, भाई की नींद खराब हो जाएगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं साथ वाले कमरे में चली गई। अगले दिन मैं सुबह किचन में जाने लगी तो मेरी नंद वहां पहले से ही मौजूद थी, अपने भाइयों के लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने जाते जाते सरसरी सा देखा तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी नंद जेठ के ग्लास में कुछ घोलकर मिला रही थी। मैंने अचानक से उसके सर पर पहुंचकर कहा, ये आपने ग्लास में क्या मिलाया है? कहने लगी, मैं क्या मिलाऊंगी, मैंने अपने भाई के लिए एक दवा उसमें मिलाई है। डॉक्टर ने दी थी कि इसके जूस में या दूध में मिला कर देना, तो बस वही दे रही हूँ। मैंने सोचा शायद ठीक ही कह रही हैं, मुझे इस पर शक करने की क्या जरूरत है। मैंने अपने शौहर को कई बार कहा था कि जेठ को मेरे अस्पताल लेकर आए, मैं अपनी निगरानी में इसे दिमागी अमराज के डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी। वो हर बार टाल देता कि इसका बड़ी अच्छी जगह से इलाज हो रहा है। मुझे 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में मैं इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि अब तक तो जेठ ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी। मेरी नंद का क्याम 3 दिन से बढ़कर ज्यादा हो चुका था। वो तीनों बहन भाई आपस में ही गुफ्तगू शनीद करते रहते थे। एक दिन मैंने अपने जेठ से पूछा कि रात को आपको क्या हो जाता है। मुझे लगा उसे अपनी बीमारी के बारे में याद होगा, मगर वो कहने लगा, मुझे क्या होता है, यानी उससे अपनी बीमारी के बारे में इल्म ही नहीं था। मैंने कहा, आपके कमरे में औरतों के कपड़े हैं, वो किसके हैं? कहने लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, आप चल कर देख लें। मैंने जाकर देखा तो वाकई में उसकी अलमारी से औरतों वाले सारे कपड़े गायब थे। ये शायद मेरी नंद की कारस्तानी थी। मैंने नंद के कमरे में जाकर देखा तो सारे कपड़े उसकी अलमारी में नजर आए। मैंने फैसला कर लिया कि कुछ दिनों तक उनके राज को पता चला कर रहूंगी। ऐसा लगता था कि मेरी नंद एक खास मकसद के लिए यहाँ ठहरी हुई थी, क्योंकि उसका शौहर तो वापस चला गया था। वो मेरे शौहर के साथ आए रोज बाहर गई होती और बेचारा मेरा जेठ घर में रहता। जाने दोनों बहन भाई मिलकर क्या कर रहे थे। मैं पूछती तो मेरा शौहर कहता, मैं अपनी बहन को घुमाने ले जाता था। अब आए रोज मेरा शौहर अपनी बहन को जाने कहाँ लेकर जाता था। ये बात मुझे शक में डाल रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जेठ मेरे कमरे में आ गया और हस्बे मामूल में वहां से दूसरे कमरे में आ गई। मैंने जाते हुए कमरे की एक्स्ट्रा चाबी भी रख ली, क्योंकि मेरी सारी चीजें इस कमरे में थीं और मुझे किसी भी वक्त कमरे में आने की जरूरत पड़ सकती थी। मैं दूसरे कमरे में चली आई। 2 घंटे बाद जब मोबाइल की बैटरी खत्म हुई तो मैंने सोचा कि चार्जर लगाकर सो जाती हूँ, मगर फिर याद आया कि मैं तो चार्जर अपने कमरे में ही भूल आई हूँ। अगर मैं वैसे दस्तक देती तो मेरा शौहर कमरे का दरवाजा हरगिज न खोलता, इसलिए मैंने चाबी लगाकर आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोला ताकि वो दोनों नींद से न जाग जाएं। इससे पहले मैं कमरे के अंदर कदम रखती, अंदर के मंजर को देखकर मेरे कदमों तले से जान निकल गई। मैंने देखा कि मेरा जेठ जनाना कपड़ों में कमरे के वस्त में लेटा हुआ है और मेरा शौहर और नंद दोनों बेड पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। ये क्या हो रहा था? मैंने पूरा दरवाजा खोल दिया और अंदर चले गई। वो दोनों मुझे देखकर घबरा गए। मैंने चिल्लाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मेरी नंद से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। शौहर अलग परेशान हो गया कि मैं कैसे कमरे में आ गई। मैंने फिर से अपनी बात दोहराई, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? जेठ जी को नीचे क्यों लटाया हुआ है? मेरी नंद बगैर जवाब दिए हड़बड़ा कर कमरे से बाहर चले गई। मेरा शौहर हकला कर कहने लगा, वो भाई साहब सोते में नीचे गिर गए थे, मुझे हाथ में चोट लगी, मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा था, इसलिए बहन को बुला लिया। अभी वो मुझसे पूछ ही रही थी कि ये सब कैसे हुआ कि तुम भी आ गई। अगरचे उसने अपनी तरफ से बेहतरीन जवाब दिया था, मगर मैं खटक चुकी थी। मैंने उसके साथ मिलकर जेठ जी को ऊपर बेड पर खींचा। मैंने देखा कि मेरे शौहर के हाथ में कोई चोट नहीं लगी थी। फिर वो झूठ क्यों बोल रहे थे? अगर वो दोनों बहन भाई गलत नहीं थे तो मुझे देखकर घबरा क्यों गए थे? मैं यही सब सोचते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ अजीब, क्योंकि मेरा दिल गवाही दे रहा था और दिल की गवाही कभी झूठी नहीं होती। मैंने फैसला कर लिया था कि ये सब जो चल रहा है उसे मालूम करके रहूंगी। अगले दिन मैं ड्यूटी से जरा जल्दी घर आ गई। नंद के कमरे के सामने से गुजरने लगी तो इसके कमरे से बातों की आवाज सुनाई दी। मैंने गुजरते गुजरते सुना तो अपना नाम सुनकर मैं रुक गई। मेरी नंद कह रही थी, तुमने अपनी बीवी को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, इसकी लगामें खींचो, ऐसा ना हो उससे हम पर शक हो जाए। मेरे शौहर की आवाज आई। वो कह रहा था, अरे बाजी फिक्र नहीं करो, उससे कुछ पता नहीं चलेगा, उसे शक नहीं होगा। मुझे भाई साहब की तरफ से डर है कि उन्हें कुछ पता न चल जाए। नंद कहने लगी, उसकी फिक्र ना करो, मैं उसे देख लूंगी। बस मुझे तुम्हारी बीवी की तरफ से परेशानी है, इसको किसी भी बहाने से मैके भेज दो जब तक हमारा काम नहीं होता। बस चंद दिनों की बात तो है, काम हो जाए तो बुला लेना। मैं दंग रह गई कि ये क्या साजिशें कर रहे हैं। मुझे इस घर से निकालना चाह रहे हैं ताकि ये अपना कोई काम कर सकें। आखिर ऐसा क्या करना चाह रहे हैं? मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे में आ गया। मुझे कहने लगा, तुम कब आई? वो मुझे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि इस वक्त मैं अस्पताल में होती थी। मैंने उसको शक न होने दिया कि मैं उनकी बातें सुन चुकी हूँ। मुझे कहने लगा कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ,
जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम एक बार भी नहीं गई। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, तुम कुछ दिन अपने माँ बाप के घर रह लेना, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। मैं समझ गई कि वो अपने प्लान के मुताबिक मुझे यहाँ से भेजना चाहता है। मैंने उसको कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद वो अपने ही भाई के खिलाफ कुछ करना चाह रहा है, इसलिए चाहते थे कि मैं इस घर से चली जाऊँ। मैंने उसके सामने अपना बैग पैक किया और कहा मैं अकेली चली जाऊँगी। उसके सामने तो मैं घर से चली गई, मगर आधे घंटे बाद ही मैं वापस आ गई। मैंने सर्वेंट क्वार्टर का रुख किया। चौकीदार और मुलाजमा को पैसे दिए कि किसी को घर में पता न चले कि मैं यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में हूँ। रात का सन्नाटा जैसे ही फैला, मैं चोरी चोरी घर के अंदर वाले हिस्से में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि आज जेठ जी के साथ क्या करते हैं। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो आज भी मुझे कल वाला मंजर दिखाई दिया। जेठ कमरे के फर्श पर चत लेटा हुआ था और वो दोनों बहन भाई इसके पास ज़मीन पर बैठे आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। मैंने कैमरा निकालकर वीडियो बनानी शुरू कर दी और इस रात उन्होंने जो भी किया मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन भी मैं अस्पताल जाने के बजाय घर में ही रही। 12 बजे के करीब दोनों बहन भाई घर से निकले। मैंने भी थोड़ी देर बाद उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो दोनों बहन भाई कहाँ जा रहे थे आखिर? मैं मुसलसल उनके पीछे थी। चलते चलते वो कैसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैंने उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। मेरे शौहर और मेरी नंद इस हद तक गिर सकते थे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उनके घर जाने से पहले ही गाड़ी मोड़कर घर का रास्ता लिया। मेरे जेठ घर पर ही थे। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सच सच बताएंगे कि आप रोज रात को औरतों वाला हुलिया क्यों बना लेते हैं? वो मुक्करने लगा तो मैंने कहा अब ये मत कहिएगा कि आपको कुछ पता नहीं। मैंने पहले यकीन कर लिया था मगर अब नहीं कर सकती, आपको बताना होगा। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर कहने लगा मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना इल्म है कि रात को मैं अपने काबू में नहीं रहता। मेरे दिमाग में एक आवाज़ सी गूंजती है और फिर वो आवाज़ जो कहती है मैं वही करता हूँ। मैंने कहा आपकी बहन और भाई आपकी इस हालत के जिम्मेदार हैं। वो दोनों रोज़ आप पर जादू करते हैं, आपको बेहोश करके आप पर जादू करते हैं, आपको फर्श पर लटा कर आप पर अजीब अजीब अमल करते हैं। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा था। फिर आज भी मैं उनके पीछे गई तो मालूम हुआ कि वो एक कामिल के पास गए हैं। वो दोनों मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर हैरानी इस बात की है कि चलो बहन तो आपकी सगी नहीं मगर भाई तो सगा है, मगर फिर भी वो ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर जेठ के रंग उड़ गए और उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो बेचारा बैठ गया, कहने लगा वो भी मेरा सगा भाई नहीं बल्कि अपनी बहन का सगा भाई है। मैंने हमेशा इन दोनों को अपना सगा ही समझा था। अब्बा ने भी उसे अपना सगा बेटा ही समझा, इसलिए सबको यही पता है कि वो मेरा सगा भाई है। किसी को नहीं पता कि वो बहन भाई हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन दोनों ने मेरे खिलाफ महाज खोल रखा है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। मैंने वीडियो उसे दिखाई तो तब जाकर उसे यकीन हुआ कि मैं सच कह रही हूँ। इतनी देर में वो दोनों घर आ गए। मैंने उनके आने से पहले से ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि वो दोनों मेरे जेठ की जान लेना चाहते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लें। मैं हक का साथ देती हूँ, इसलिए मुझे कुछ गम नहीं था कि पुलिस मेरे शौहर को भी साथ ले गई है। नंद की हरकतें मुझे पहले भी मशकूक लगती थीं और मुझे लगता था कि शायद वो काला जादू कर रही है, मगर मैंने यही सोचा था कि वो अपनी सास का अंजाम देख चुकी है, इसलिए कभी ये गलती नहीं करेगी। मगर इसने तो सास से सीखा हुआ मेरे जेठ और अपने मुंह बोले भाई पर आजमाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो रोज जूस में थोड़ा सा जहर भी पिला रही थी। तफ्तीश हुई तो पता चला कि इन बहन भाइयों ने जेठ की सारी दौलत अपने नाम करने के लिए ये सारी हरकत की थी, ताकि वो जादू का शिकार होकर पागल हो जाए और सारी जायदाद इन दोनों बहन भाइयों के हाथ आ जाती। वो जानबूझकर उसे जनाना कपड़े पहनाते थे ताकि कल को मेरी गवाही भी शामिल हो जाती कि जेठ अजीबो गरीब हरकतें करता है। मगर शुक्र है कि मैं उनके जाल में न फंसी और अपने तौर पर तहकीक करके सच सामने लाई। मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली और कुछ अर्से बाद अपने जेठ से शादी कर ली, क्योंकि उसके मुझ पर बहुत एहसानात थे। अपने बाप के मरने के बाद उसने मेरे बाप को मेरे तालीमी अखराजात दिए और आज उसकी वजह से मैं इस मुकाम पर थी कि डॉक्टर बन गई थी। मेरे नंद और साबका शौहर को इक़दाम कत्ल के जुर्म में 5 साल की सजा हो गई थी। अब मैं अपने शौहर के साथ खुश थी और उसका इलाज भी शुरू करवा दिया था।